Good morning, students. Today I am going to revise the topic past tense. The examination is at hand. The examination is very close to be conducted, and that is why I want you all the students to revise the topic past tense. So it seems to be easy, but it's not the easy topic. So while attempting all the questions, please keep in mind, first of all, go through the questions very carefully and decisively. Otherwise, you will make a huge mistake while attempting the questions regarding tenses. So let us see some of the examples bearing past tense. Keep in mind the examination is very close. So I would like to tell you, be attentive, be careful, because your marks will be added to the annual report examination. That is why there is no option to make mistakes. So let us see some examples. Students, see the question. When I reached station, I realized that I dash leave my wallet at home. So what should be the correct form of verb to fill in the blank to make it a meaningful sentence? First of all, keep in mind while attempting the question, that is, see here, I reached. That is your verb, and we all know that it is the second form of verb. When I reached, it is the second form of verb. And where is the verb? First of all, your target is to find out the verb given in the sentence. That is your verb, reached station, I realized. It is also the second form. I realized that, and it is also the base form. It is what? Base form. According to the context, you have to write the correct form of the verb to fill in the blanks. So I realized that. That is the conjunction. That is what? That is the conjunction to join two sentences together. I realized that I dash leave my wallet at home. What should be the correct form of verb? Okay, let me explain. Suppose this is the timeline, and this is what? This is present time.
Dear students, where do we use past indefinite tense and where do we use past perfect tense? It's a big matter to discuss. Actually, most of the students make mistakes while choosing past indefinite tense and past perfect tense. The major difference between these two tenses is that past indefinite tense expresses the sequence of action. The first action happened, then after the second action, the third action, the fourth action, and continue going on. But past perfect tense is not like that. Past perfect tense means you must have a reference, a timeline which expresses past time to express past perfect tense. What does it mean? इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ आप प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं। आप प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं। वो पास्ट कितना भी पुराना पास्ट हो, मीन टू से 200 साल, 300 years, 400 years और 1 million और billion years ago, कितना भी पुराना कोई इवेंट हो, आप उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये तो प्रेजेंट में खड़े होकर आप पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस, आपको प्रेजेंट की लाइन को छोड़कर पास्ट की लाइन पे आना पड़ेगा। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, आपको प्रेजेंट की लाइन को छोड़कर पास्ट की लाइन पे आना पड़ेगा, तभी पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। यहां पर देखें, ये आपका पास्ट है प्रेजेंट से बैक, और ये आपका पास्ट ऑफ पास्ट है। प्रेजेंट से बैक है, ये क्या हो गया? पास्ट हो गया। और पास्ट से बैक जाएंगे तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट होता है। अब अगर पास्ट परफेक्ट ये होता है तो व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? हमारे पास दो स्टेटमेंट होने जरूरी है। We must have two statements through which we can identify which action happened first, जिससे हम ये पता लगा सके कौन सा एक्शन पहले हुआ। अब आप यहाँ पर इस सेंटेंस को देखें, आप कह रहा है कि when I reached station, सपोज करो कि ये टाइम लाइन है, सपोज करो ये टाइम लाइन है, ये टाइम लाइन, ये आपका प्रेजेंट है, दिस इज योर प्रेजेंट। अब क्या कह रहा है? व्हेन आई रीच स्टेशन, सपोज करते हैं यहां पर कहीं वो स्टेशन को रीच करेगा, सपोज कर लेते हैं यहां पर वो रीच करता है। अच्छा, यहां तो वो रीच कर गया और उसके बाद कह रहा है कि स्टेशन पहुंच गया। आई रियलाइज, चलो उसके बाद इसने यहां पर कहीं उसको रियलाइज हुआ, सपोज कर लेते हैं उसको रियलाइज यहां पर हुआ। रियलाइज का मतलब क्या होता है? पता चलना, कम टू नो, वो ऐसी चीज जो आपको उस समय नहीं पता थी, वो चीज आपको पता चल गई, यहां पर आपने रियलाइज किया। अच्छा, रियलाइज आप क्या चीज करोगे? आप देखें यहां पर आई रियलाइज दैट आई लीव, वो चीज आपको याद आ गई जो पहले हुआ। मीन टू से आप वॉलेट को घर पे पहले आप भूल गए, तभी तो आपको रियलाइज हुआ। वॉलेट का भूलना ये एक्शन पहले हुआ, ये एक्शन पहले हुआ, फिर आपको रियलाइज हुआ। अगर ये एक्शन पहले हुआ वॉलेट को भूलना, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये एक्शन तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपको फिल करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। एंड वी ऑल नो दैट टू कंस्ट्रक्ट द रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज हैड प्लस V3, मीन टू से यू हैव टू राइट
left, had left, I repeat, had left होगा यहाँ पर। जैसे ही आप यहाँ पर करोगे left करोगे, left, सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेफ्ट करोगे क्या बन जाएगा? सेकंड फॉर्म बनेगा। सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस डैट के बाद नहीं आएगा यहाँ पर। रीजन यही है कि ये एक्शन पहले हुआ। अगर ये एक्शन पहले हुआ तो आप यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे, अदरवाइज द सेंटेंस विल गो रॉन्ग, सेंटेंस गलत हो जाएगा। और इसी तरीके से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और बहुत ही बेहतर हो जाते हैं। प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे। मैंने इस पूरे लेक्चर में आपको यही समझाने की कोशिश किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, आस्क मी through the WhatsApp number. Okay, thank you so much.